Morning, students of the BSc first year classes. In the BSc first year, I was started to the organelles of the cytoplasm, the plasma membrane, mitochondria, in a Golgi complex, and now today I will start to the endoplasmic reticulum, that is in the SART is called to the ER. The endoplasmic reticulum is one of the also important organelles which found into the both regions, that is the two regions particularly we can say that about to the there are the association of to the nuclear membrane and also near to the plasma membrane as well. So this is very important for that to the for synthesis of to the protein, lipid and the glycogen, and also help into the detoxification and formation of or the synthesis of the cholesterol and to the steroid as one. These are also help into the endomembrane transport system, or also called to the this is the main chief component of the endomembrane system, or the cytovacuolar system. And ER is also have to the different kinds of the forms. There are the three forms of the endoplasmic reticulum: cisternae, vesicles and tubules. After that, the presence of the ribosomes on the membranes of the ER, that is divided into the two categories: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. And endoplasmic reticulum, on the point of view, the function is very important due to the presence of the enzymes for the playing to the important role into the synthesis or to the glycogen, lipids, proteins, cholesterol, and also support to the cell as a mechanical support for the colloidal system to maintain to the shape of to the cell, so that today's topic is very important as the organelles of the endoplasmic reticulum. Now go to what is the description and the histological events and after the forms, structures and to the function of the endoplasmic reticulum. That is a very important in the aspect refer to the point of view to the function, to the synthesis. So that we will now start to the endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum as a organelles which found into the all the type of the cell, plant cell or animal cell. आज के टॉपिक में हम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये किस प्रकार के सिस्टम में बिलोंग करता है, इसकी ओरिजिन कैसे होती है, हाउ इज द पॉसिबल टू ओरिजिन फ्रॉम टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स और नॉट, सो दैट। तो आज हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा मैंने बताया कि हर प्रकार के सेल में पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको शॉर्ट में ER बोला जाता है, वो हर प्रकार के सेल में पाया जाता है। इसकी जो खोज हुई है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से 1945 ईस्वी में पोर्टर, क्लाउडे और फुमल ने एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर और रेटिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में की थी, और
जब वो ड्यूरिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन बाय द पोर्टर क्लाउडे एंड द फुलाम इन 1945, दैट इज द फिलामेंटस रेटिकुलर स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. So that we are go now into the terminology who is the persons which described as to the endoplasmic reticulum, to the two men which are involved to the say that to the as a endoplasmic reticulum as a name. is the the term endoplasmic reticulum was first used by the Porter and Coleman in 1952. 1952 में जो पोर्टर और कॉलमैन थे उन्होंने जो है इसको पहली बार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया. इसका भी एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर तो होता है, ये भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर की तरह वहाँ पे दिखाई पड़ता है साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए इन्होंने इसको जो है रेटिकुलर बोला. और इंडो मेम्ब्रेन है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको इंडो मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक प्लाज्म के अंदर एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया, जिसको शॉर्ट में ईआर बोला जाता है. आगे देखते हैं हम. ये तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थे, ऑब्जर्वेशंस थे जिसके आधार पे. अब यहाँ से शुरुआत होती है कि मैंने जैसे पहले प्रीवियस लेक्चर में इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब कर रहा था, तो उस समय भी बताया था कि वो भी एक वन ऑफ द पार्ट होता है, ऑर्गन्स होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का. तो दैट इज द चीफ. लेकिन हम इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बताने से पहले थोड़ा सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ओरिजिन को बता देते हैं. ओरिजिन के लिए the origin of the endoplasmic reticulum which are not sure, this is not confirmed by the scientists, and there are the two types of the endoplasmic reticulum which situated into the cytoplasm as their presence to the different places. The scientists which are given to their aspects. First aspect is that to the whose the endoplasmic reticulum is found into the near the nucleus or the along with the nuclear membrane, that is evoluted or the originated from to the nuclear membrane. And another aspect of the scientist is given on the basis of to the near of the plasma membrane, that is the plasma membrane is originated to the smooth endoplasmic reticulum. There are the two types of endoplasmic reticulum due to the presence of the ribosome, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. ये जो दो एस्पेक्ट मैंने ओरिजिन के आधार पे बताया, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने ये दिया है कि संभवतः जो ओरिजिन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, या फिर यूँ कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती है. यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया होने लगती है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एक्सोसाइटोसिस में प्रोसेस में जाता है, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खासकर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, जो कि उसके न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में पाया जाता है. और दूसरा जो एस्पेक्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि ये वैज्ञानिक ये मानते हैं, डिस्कवरर ये मानते हैं कि जब इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है उस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया में जाती है, और उसके माध्यम से ड्यूरिंग दिस टाइम वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है. तो आपने देखा कि ओरिजिन के हिसाब से द ओरिजिन इज स्टिल अननोन राइट नाउ, बट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कंसिडरेशन विच आर given by the scientist or the discoverer or the proposer. What is the aspect? One aspect is given by to the one group is near to the nuclear membrane or the through the nuclear membrane when the
going into the exocytosis process formed to the rough endoplasmic reticulum, and another places we are concerned to the plasma membrane, where the plasma membrane is going into the endocytosis process that is formed to the smooth endoplasmic reticulum. So that to the there are the origin is still unknown, but these are the two kinds of the hypothesis is given by to the scientists. And after that, to the these are the very important into the endomembrane system, because this is the endoplasmic reticulum. Endon is the within, or प्लाज इज द फ्लूइड स्ट्रक्चर एंड द रेटिकुलर स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया। अब ये इंडोमेम्ब्रेन का सबसे प्रिंसिपल चीफ क्या होता है, पार्ट्स होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे देखें, द ईआर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू द साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम और द साइटोकैविटी नेटवर्क। अब इस तीनों चीजों का मतलब आप समझिए, मैंने कहा कि ये चीफ कंपोनेंट होता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या बोला जाता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, जहां से हम आपको बता दें, जहां से आप देखिए एक ये सेल है, हम सेल बनाते हैं, खासकर एनिमल सेल की बात करते हैं, न्यूक्लियस है उसका, एक छोटा सा न्यूक्लियस बना लेते हैं। और न्यूक्लियस आप जानते हैं, हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखाते हैं, इस प्रकार का न्यूक्लियस है। और इस प्रकार के न्यूक्लियस में आप देखें तो देयर आर द 2 लेयर्स, और इस लेयर से अगर हम बाई परफोरेशन करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ स्मूथ पाई जाती है यहाँ पर, इसके बीच में गोल्जी बॉडीज होती है, गोल्जी बॉडीज भी पाई जाती है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर उसका भी है। तो ये देखिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है, क्योंकि ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो शुरुआत होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद देखें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को गार्ड किया है, दैट इज द न्यूक्लियस इज गार्डेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट हैव टू द 2 लेयर्स एंड टू द outer and inner, and cyto nucleoplasm, nucleolus, and to the chromatin fibers, that is the associated with the ER। पर्टिकुलरली अगर कह सकते हैं हम तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद हम क्या करेंगे, वो ये आपका लाइसोसोम है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में बाहर निकल जाता है। तो ये पाथ है कहाँ से, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस से, जो कि आरएनए और जो उसकी प्रोटीन्स होती हैं वहाँ पे, आरएनए और जो प्रोटीन्स होती हैं वो थ्रू द चैनल, थ्रू द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जिसको हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोल सकते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड। ये पाथ है किसके लिए, आरएनए और प्रोटीन के लिए, जो कि न्यूक्लियस में बनता है। तो एक चैनल है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके माध्यम से ये आरएनए और प्रोटीन ये सेल के बाहर आउटसाइड में जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया होगी, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया, मतलब यहाँ से ये बाहर निकाल जाते हैं। उसी प्रकार से थ्रू द चैनल ये फिर से अगर वहाँ से आना होता है तो उसी चैनल से फिर से अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो पर्टिकुलर आरएनए और प्रोटीन के लिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, और इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये सबसे चीफ कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट माना जाता है। इसको देखें, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक सिस्टम जो कि यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, या फिर साइटोकैविटी नेटवर्क। तो सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई पड़ता है, रिवील्ड होता है, यहाँ पे सीन किया जाता है,
ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे नेटवर्क लाइक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्योंकि एक दूसरे से सबका एसोसिएशन होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आरएनए एंड द प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी बताया कि जो है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के माध्यम से ये सेल जो है इस प्रकार के मूवमेंट में जाती है। तो वहाँ पे देखें इस सिस्टम को कंसिस्ट करने वाले कुछ भाग हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और लाइसोसोम लिखेंगे क्योंकि ये एनिमल सेल है, और उसके बाद पांचवा लास्ट में हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। तो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला प्राथमिक जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड पार्ट होने के कारण कहा जाता है। अब जबकि ये तो रहा हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, हम एक्चुअल पे जाते हैं मार्फोलॉजी ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। तो मार्फोलॉजी पे चलेंगे तो मार्फोलॉजी में देखेंगे कि कितने प्रकार के या फिर इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसकी साइज क्या होती है, शेप क्या होता है, या पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि एक ही फॉर्म में पाया जाता है या फिर डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, 3 शेप में पाया जाता है, और उस 3 शेप के आधार पे उसको अलग अलग नाम दिया गया है। एक पहला जो एज ए यूनिट सिस्टर्नी बोला जाता है, जैसा कि आपने उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी देखा था, उसकी भी यूनिट सिस्टर्नी होती है, क्योंकि सिस्टर्नी क्या होती है, फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर भी एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इसके आधार पे इसमें भी सिस्टर्नी एज ए यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। वो फ्लैटेंड अनब्रांच्ड होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसका एसोसिएशन होता है। दूसरा जो होती है ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब्यूल्स का एसोसिएशन उसके दो अगले भाग जैसे कह सकते हैं कि सिस्टर्नी और वेसिकल्स होता है, दोनों को ज्वाइन करके ये ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा जो है वेसिकल्स होती है जो कि ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और अलग अलग जगह पे बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स पे पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके 3 फॉर्म कैसे हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप फॉर्म्स ऑफ द ईआर, मार्फोलॉजी के रेफरेंस में फॉर्म्स ऑफ द ईआर, पहला फॉर्म्स है सिस्टर्नी और लैमेलर फॉर्म, दूसरा है ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर फॉर्म, थर्ड है वेसिकल्स और वेसिकुलर फॉर्म। देयर आर द 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म आपने देखा, और 3 फॉर्म के हिसाब से आप यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से डायग्राम बनाते हैं और तो उस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कैसा है। तो सबसे पहले हम सिस्टर्नी, जो कि क्या होता है, मैंने कहा कि सिस्टर्नी sac like structure, unbranched structure which have to the some kinds of the diameters, and that is the diameter is about to the 40 to 50 angstrom। जो जैसे हम एक देखिए यूनिट, अब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं उसके माध्यम से आप समझेंगे। अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखें ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं, और स्ट्रक्चर में देखें इस डॉटेड लाइन ऐसे हम बनाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर इस प्रकार के फॉर्म, तो इसी को देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर को जो कि एक दूसरे से एसोसिएट किया है, तो अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके ऑर्गन हमारे ऑर्गन्स में पाया जाता है तो उस फॉर्म के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिस्टर्नी और लैमेलर फॉर्म होता है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और इसका जो डायमीटर है वो मैंने बताया कि 40 to 50 एंगस्ट्रॉन का होता है, इस डायमीटर का होता है मिला के, जो कि ज़्यादातर हमारे जो सिंथेटिक पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। पर्टिकुलरली जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वहाँ पे ये सिस्टर्नी जो लैमेलर फॉर्म्स होते हैं जो इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी बात करें जो कि हमारा जो है ट्यूबुलर फॉर्म्स है। ट्यूबुलर फॉर्म्स कैसा होता है आप देखें, ट्यूब्यूल लाइक होगा, तो ट्यूब्यूल लाइक में आप देखेंगे कि ट्यूब्यूल्स कैसा होगा, ब्रांच फॉर्म में होती है। आप देखिए इस फॉर्म में अगर हम कुछ इस तरीके से बनाएं, ऐसा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो कि आपको दिखाई पड़ेगा, है ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो कि दिखाई पड़े तो उसको बोलते हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब देखिए ट्यूबुलर है इसलिए इसको ट्यूब्यूल्स
ट्यूब्यूल बोलते हैं या ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो ट्यूबुलर फॉर्म्स हैं, और ट्यूबुलर फॉर्म्स जो होते हैं वो मैंने कहा कि ये जो तीसरा वेसिकल और वेसिस्टर्नी को एसोसिएट करके, दोनों को एसोसिएट करके रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो 50 से 100 तक होता है, 100 एंगस्ट्रॉन। और जो तीसरा वेसिकल है ये बहुत सिंपल सा ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का होता है, और एग्रीगेशन इस तरीके से एसोसिएशन होता है, ऐसे ऐसे करके। तो इस प्रकार का एसोसिएशन ऑफ वेसिकुलर, तो उसको वेसिकल्स है, वेसिकल लाइक है, वेसिकल्स है, इसलिए इसको वेसिकुलर फॉर्म बोलते हैं, इस प्रकार से। तो आपने देखा कि जो है यहाँ पे 25 to 500 एंगस्ट्रॉन तक पाया जाता है। तो आपने देखा देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द ER, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स is also called to the lamellar, tubular and the vesicular. This is the flattened and unbranched structure which are having to the 40 to 50 angstrom diameter. This is the abundantly found into the protein synthesis organs, organs of the protein synthesis. Where are the sites of the site of the protein synthesis of the organs? And this is the tubular structure. This is the tubules and which are communicating to the cisternae and the vesicles, and another one is the vesicles which are oval shaped structure have to the 25 to the 500 angstrom of the diameter. तो 3 फॉर्म यहाँ पे पाए गए, और तीनों का अलग अलग एंगस्ट्रॉन होता है, अलग अलग शेप होता है, और अलग अलग साइट होता है, अलग अलग प्लेस होता है। ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उस ऑर्गन्स में अलग अलग सबका फंक्शन है, अलग अलग प्लेस है। तो उसी के हिसाब से इन तीनों का भी स्पेस हमारे ऑर्गन्स के अंतर्गत अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ग्लाइकोजन और लिपिड के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब फॉर्मेशन करते हैं, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, कुछ जो है एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसका मैकेनिज्म है, हम आगे देखते हैं। तो आपने पढ़ा, आपने देखा जस्ट ये you are better understand about to the there are the 3 forms. अब यहाँ पे 3 फॉर्म्स में हमने मार्फोलॉजी के अंतर्गत देखा, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, एज यू मेंशन दैट into the beginning of to the this lecture as endoplasmic reticulum, the endoplasmic reticulum is present into the 2 places. One is associated with to the nuclear membrane of the nucleus, and another one is the near of the plasma membrane, just is given to the hypothesis or the revealed or the scientist is the associated with the nuclear membrane is the rough endoplasmic reticulum, and to the through the plasma which are made the another structure is smooth endoplasmic reticulum. Due to the presence of the ribosome on the membranes of endoplasmic reticulum that is associated by the nuclear membrane, it is called to the rough endoplasmic reticulum. उसको हम rough endoplasmic reticulum बोलते हैं। While that formed by the plasma membrane as a scientist that is smooth, do not have to the any ribosomes, so that these 2 types of the ribosome on the basis of on the behalf of to the ribosomes presence, so that these are found to the abundantly for the both of the ER in different organs, in the different types of the organs which are responsible for that to the synthesis of the different substances that like to the protein, lipids, carbohydrate, enzymes, hormones. So for the protein synthesis, that is the participated protein synthesis to the rough endoplasmic reticulum, and the glycogen and the lipids is the smooth endoplasmic reticulum. हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम ER इज द 2 टाइप। ER पर अगर राइबोसोम उपस्थित होता है तो उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, अगर वहाँ पे ER नहीं है तो उसको अलग रखा जाता है। तो इसी के आधार पे अगर वहाँ पे राइबोसोम की उपस्थिति है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं,
कि मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है अगर ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है तो उसके आधार पर उसको रफ बोल दिया जाता है, क्योंकि उसके सरफेस पे ये इस प्रकार से उपस्थित होंगे कि तो लुक लाइक एज ए रफली स्पेसेस आर द मेम्ब्रेन्स, और जो कि एकदम स्मूथ जिस पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में RER बोलते हैं, और दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं। तो आप ये समझिए यहाँ पे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम को कंटेन किया है, तो जेन्युइनली जो राइबोसोम को कंटेन करता है, क्योंकि अभी आप अगले लेक्चर में हम राइबोसोम आपको पढ़ाएंगे, तो राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेना होता है। तो जैसे ही जिस जगह पर भी राइबोसोम की उपस्थिति होगी तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेगा। तो दैट इज द टेक पार्ट इन टू द प्रोटीन सिंथेसिस वेयर टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होगा, और वो इस प्रकार के सबसे ज्यादा this type of the endoplasmic reticulum found into those type of the organs are the tissues where are the take part into the protein synthesis। तो उस प्रकार के ऑर्गन्स में पाया जाता है जहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि जैसे आप लीवर को ले सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को ले सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे हमारी जो पैंक्रियाज होती है, तो जहाँ पर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं, एंजाइम्स बनती हैं जो कि प्रोटीनस इन नेचर होती हैं, वहाँ पर उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसा मैंने वर्टिब्रल कॉलम के लिए बोला कि ये कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जहाँ पे ये पाए जाती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होती हैं। और दूसरा आप देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन और लिपिड बनता है। तो मतलब कि जैसे स्पर्मेटोसाइट होता है, जैसे कि जहाँ पे जहाँ पे ग्लाइकोजन और ग्लूकोज से संबंधित या फिर लिपिड से संबंधित जो सिंथेसिस होती है उससे रिलेट करता है। तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डिस्टिंक्शन है। अब इसके आधार पे हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण फंक्शनिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। कुछ पहला फंक्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल एंड गिव्स सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देखें क्या है, इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, सेल को अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है जो क्या करता है, जो कि गिव्स सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स। सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है या मैट्रिक्स होता है या फ्लूइड होता है, भरा होता है, जो कि अब सेल का एक शेप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने कहा न्यूक्लियस है और उसका साइटोप्लाज्म है। अब इसकी उपस्थिति में, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में रहता है, तो पूरे के पूरे सेल के जो मैट्रिक्स होता है उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट करता है, सपोर्ट करेगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करेगा, एक फ्रेमवर्क बेस तैयार करेगा, जिससे कि वो जो फ्लूइड है, फ्लूइडिटी ज़्यादा ना हो, सेल का जो शेप ना बिगड़े, उसको मैकेनिकल सपोर्ट तैयार करता है। तो इसीलिए मैंने कहा गिव सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को, कोलाइडल मैट्रिक्स जो है उसको सपोर्ट करता है, जिससे कि सेल की आइडेंटिटी, सेल का फीचर, सेल का शेप बना रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था, दैट इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द ER। एंड going to the second one, its membrane contain many enzymes which perform various synthetic and metabolic activities। ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनिंग है, that is the point of view for that to the synthesis and to the metabolic activities, that its membrane is contain many enzyme which perform various। जैसा कि मैंने कहा अभी
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस कर रहा है। तो हर प्रकार की सिंथेसिस के लिए एक केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो एंजाइमेटिक एक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म के लिए होता है। तो देखें कि इसके मेम्ब्रेन्स में, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होती है। जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होती हैं, तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो मतलब एंजाइम जो है इसके मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं, या यूँ कहें कि जो ये क्या ER है वो उसके मेम्ब्रेन्स में बहुत अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, विच परफॉर्म वेरियस सिंथेटिक, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, लिपिड की सिंथेसिस के लिए, और जो है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए, मतलब जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो सबस्टांस कंपाउंड हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, उनकी सिंथेसिस करता है। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में परफॉर्म होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तभी होगी, जैसा मैंने बार बार आपको बताया है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में भोजन फूड स्टफ्स के लिए, वो सारे मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। और हर मेटाबॉलिज्म, हर रिएक्शन के लिए केमिकल एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और वो एंजाइम्स कुछ जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, विटामिन मेटाबॉलिज्म है, मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म है, हर प्रकार के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। तो और जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो जब तक जो है उसका एसिमिलेशन नहीं होगा, तब तक वो ना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ना बिल्डिंग ब्लॉक्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होगा, ना जो है एक्टिवेटर्स यूज होगा। तो हर प्रकार के मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए बोला गया है इट्स मेम्ब्रेन कंटेन्स मेनी एंजाइम्स विच परफॉर्म वेरियस सिंथेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। And after that we are going into the very important, it acts as a intracellular transporting system. As we mentioned that in the previously, that is a main component of the endomembrane system for that to the transporting to the RNA and to the proteins which are found into the nucleus, that is make to the path for going into the outside of the cell for the recommendation, so that through the nuclear membrane which are associated to the rough endoplasmic reticulum, then to the Golgi complex, and after that to the lysosomes. Lysosomes is are revealed that into the previous lecture which I mentioned that to the Golgi complex is formed to the primary lysosome, and after the reaching to the lysosome which are goes to the outer side through the plasma membrane. So that is the included or the comprises to the these kinds of the structures to the nuclear membrane, Golgi endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, and after that to the plasma membranes, so that to perform to the endomembrane system, cytovacuolar system and all, so that here indicating to the its act as a intracellular transporting system. So RNA and proteins is transported through the these kinds of the mechanism which are mentioned into the recently. So go now in the another one, and to the another one is important for that to the particularly as you can say that to the ER which are known for that to the synthesis of the proteins and the lipid and glycogen. तो जो अगला जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो सिंथेसिस के लिए जाना जाता है, जो कि पर्टिकुलर जैसे हम कहें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किसके लिए जाना जाता है, क्या बनाता है, तो हम तुरंत बोलते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए, लिपिड की सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। तो इस प्रकार की सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। तो अगला जो फंक्शन है ER प्रोवाइड्स साइट्स फॉर टू द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने कहा राइबोसोम उस पर पाया जाता है, और राइबोसोम का उपस्थित होना ही इंडिकेट कर देता है कि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यूकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। तो RER प्रोवाइड साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक साइट प्लेस तैयार करता है, और वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में होती है।
ये हम जो है कुछ अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अगले में चलते हैं। इट आल्सो हेल्प इन टू द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन एंड द लिपिड। ग्लाइकोजन एंड लिपिड, ग्लाइकोजन इज द इन द अनदर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लिपिड। तो ग्लाइकोजन जो कि ग्लाइकोजन कब बनता है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लाइकोजेनेसिस से होता है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया कब होती है? व्हेन द इंसुलिन विच आर सिक्रीटेड एज अ हार्मोन फ्रॉम टू द बीटा सेल्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस for that to the maintain blood glucose level in the blood, so that is stimulated to the liver cell. Then liver cell is stored the glucose in the form of the glycogen, so that this type of the endoplasmic reticulum, that is a smooth endoplasmic reticulum found into the liver as well, so convert to the glucose into the glycogen as a stored materials. And when the time of the glucose is little bit the reduction of the glucose in the blood, so that this is once again is going into the glycogen in the glucose into the glycogenolysis process. तो इस प्रक्रिया के दौरान ये सारी चीज़ें जो है ग्लाइकोजन बनती हैं। ग्लाइकोजन को जो है एनिमल स्टार्च बोला जाता है, क्योंकि ये एनिमल्स के टिश्यूज़ में बनता है, और लीवर और जो हमारी मसल्स होती हैं उसको बनाती हैं, अगर एनिमल के लिए कंसीडर हम करेंगे तो। और लिपिड जैसा कि कॉम्प्लेक्स उससे भी एनर्जी निकलती है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से लिपिड बनता है। तो इस प्रकार से ये सिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल एज अ पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, और ये जो है बहुत प्रकार के एंजाइम्स को कंटेन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टेलोफेज के, जब सेल डिवीजन होता है, जब टेलोफेज की प्रक्रिया होती है, तो उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को भी इसी के द्वारा दिखाया जाता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर आल्सो फॉर्म टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग टू द टेलोफेज ऑफ द सेल डिवीजन, सो दैट टू द नंबर्स ऑफ द फंक्शंस विच आर we will see so that today's topic of the endoplasmic reticulum as one of the organelles is a very important into the synthetic process. So that now go to the their इस चैप्टर के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक और दूसरा मुख्य ऑर्गेनेल्स था, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, उसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में और उसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हमने जाना। और आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को बेहतर समझे होंगे, और हम अगले चैप्टर में आपको राइबोसोम एज ए ऑर्गेनेल्स जो है पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे उस पर, और हम जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसका पर्टिकुलर क्या फंक्शन होता है। तो I hope you are understand for that in the convenient and to the appropriate form, so that I will teach to the another chapter as organelles to the ribosomes, so that today's topic is closed. Thank you.